Good afternoon, everyone. We'll start our session soon. Before that, I would like to inform you that we have several exhibitions going on as we speak, and they will be on for the next 3 days. We have Poetry as Art, an exhibition by artist Rita Jhunjhunwala, which is going on at Rang Darshini. An exhibition of vernacular Gaon paintings, which is an exhibition by Radhe Shyam Kherwar of Wasim Khar village, Balaghat, which is at the forecourt in front of the Tribal Art Gallery. Permanent Hall of Masters at Modern Art Gallery. Permanent Adivasi Art happening at Tribal Art Gallery. And next to the bookstore, we have India Life Around Water, an exhibition by Dr. Sarah Keller, and an exhibition of projects by NID students. So several exhibitions to choose from. Do pay a visit. We have a question for our book lovers gathered here today. We couldn't ask them earlier because we were running behind schedule. Time to win some prizes. Novelist Chitra Banerjee Divakaruni's latest book, An Uncommon Love, is the story of the early days of which famous Indian couple who perhaps are today also the most famous Indian in-laws. We have, yes. Yes, can you please answer in the mic? Yes, that will be wonderful. My name is Aman, and the answer is Narayan Murthy and Sudha Murthy. Yes. Thank you and congratulations. A book of Sufi stories is your gift. Thank you for your participation. Our next session is Baat Niklegi To Phir, the life and music of Jagjit Singh, where Satya Saran will be in conversation by Ghazal exponent Neena Srivastav. In a few minutes from now, we will start the session. We welcome you all once again. Baat niklegi to phir dur talak jayegi. The legendary Jagjit Singh was synonymous with ghazals, but he was more than just that. A singer, composer, arranger, lyricist, all rolled into one. Tracing his evolution from his Namdhari Singh roots through his diverse musical influences to his recreation of ghazal as a lively contemporary form of music, we now have amidst us author Satya Saran, who's written acclaimed biographical books on luminaries like Guru Dutt, S.T. Burman, Pandit Hari Prasad Chaurasia, and Jagjit Singh, and a book of short stories titled The Dark Side. She's a guest lecturer at NIFT, where she teaches fashion journalism. Ms. Saran will be in conversation with Army officer turned author Vartul Singh and ghazal exponent Dr. Neena Srivastav.
Mr. Vardal Singh's published works include Bhopal Nama, Writing a City, Ek Guna Bekhudi, a critically acclaimed novel. He's currently working on a compendium of Hindi literature of the 20th century, and his next book, Varanasi, Reading a City, published by Penguin Random House, will be out in March. Dr. Neena Srivastav, a distinguished professor of vocal music and a graded artist of All India Radio, brings a rich legacy as the granddaughter of the renowned poet Shri Maksuddin Lal Roshan Shamshabadi. She has showcased her exceptional talent through successful performances of semi-classical, ghazal and bhajan across the country. She's also the co-editor, composer and singer of Ghazal Sangrah Shame Roshan. Welcome. Can I request the volunteers to provide the mics on stage, please? We'll need one more mic. Good afternoon, everybody, and thank you for being present here and encourage us. I know it's a very interesting topic, and we will like to make it as interesting as per your expectations. आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक ही हम लोग चलेंगे, और जैसा कि हम लोग सबकी हमेशा से ये रहा है कि BLF के सब प्रोग्राम हम अंग्रेज़ी और हिंदी मिक्स भाषा में करते हैं. बहुत सारे हमारे लोग हैं जो कि शायद केवल हिंदी ही जानते हों और हिंदुस्तानी भाषा उस ढंग से ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी होगी. तो शुरुआत करते हैं. कैन आई मैम? ओके. सो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जिस शख्स के साथ मैं अभी बैठा हूं, इन्होंने जो किताब लिखी है, द बुक विच सत्या जी हैज़ रिटन, आई थिंक दैट मस्ट बी रेड बाय एवरीबडी हु in any or the other way appreciates ghazal. Not only you will get to know the intrinsic, the connoisseur way of appreciating a ghazal, the language of music, the musicality present in Jagjit Singh as a singer, and of course, very sadly, the pathos which he subsequently endured. It was, I must say, I get a lump in my throat when I was going through that book, particularly in the last 5 chapters. First 3-4 chapters were very interesting, and we could relate it when we were young, how well we could relate the unforgettables, Talat Aziz, when he launched Talat Aziz. So the first question, Satya ji, to you is, I would like you to add on to that rather. I have always observed, and you would also rather appreciate, that baat niklegi to fir dur talak jayegi. How many of us know the शायर of that? उस नज्म के कितने लोग जानते हैं लेखक को? क्या मैं आपसे जान सकता हूं? कोई? बहुत कम लोग. मेरा यही पॉइंट है. वो हैं कफील आजर अमरोहवी. लेकिन हम लोग बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, हम सभी जानते हैं, खासतौर से 70s और 80s के जनरेशन के जो लोग हैं और जिन्होंने अपने माँ बाप के माध्यम से, अपने पेरेंट्स के माध्यम से गज़ल सिंगिंग की तरफ कदम बढ़ाया होगा. ये खासियत है जगजीत सिंह में. ये उनकी आवाज़ का जादू है. आप what are your views when you included the tome, rather your monograph as बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी? There's always only one mic. Anyway, so no, the point is that I didn't singularly and alone choose this title. It was a combined effort. But the reason we chose it is कि अगर जगजीत की बात निकली तो वो फैलती रहती है. एक से कुछ बोलो तो दूसरा कुछ और बोल देता है. Everyone has a memory of Jagjit. And in fact, that was something that I experienced. कि कहीं किसी पार्टी में किसी से मिल ली और उन्होंने कहा, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? ऐसे मैं जगजीत के बारे में लिख रही हूँ. अरे मैं एक कहानी बता देता हूँ. So I had about 100 stories
about Jagjit by all sorts of people, some real, some imagined. So I had to choose from them. तो ये you know, this is इसीलिए बात निकलेगी तो. थैंक यू. हम लोग माइक एक दूसरे को ही देते रहेंगे. इसको जरा बदल देंगे तो बेहतर रहेगा. हाँ जी, ये अच्छा. द सेकंड क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब मैंने हर्फ दर हर्फ पढ़ रखी है. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने किताब में मेंशन किया है कि जगजीत सिंह का आप लोग भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका जो गिवन नेम था बाय हिज पेरेंट्स वाज जगमोहन. और जगजीत, खैर वो बात की कहानी है जो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए छोड़ दूंगा कि आई विल डेवलप दैट इंटरेस्ट इन यू सो दैट यू पिक अप दिस बुक एंड रीड. हमारा मानना ये है, जो मैं सत्या जी से अभी चाहूँगा कि उस पर वो आई वॉन्ट हर कॉमेंट्स ऑन दैट, कि जगमोहन नाम जो था, जगमोहन का मतलब होता है द वन हु चार्म्ड द वर्ल्ड, एज यू हैव रिटन. द वन हु चार्म्ड द वर्ल्ड probably was the better name than Jagjit. Jagjit का मतलब होता है the one who conquered the world. और आपकी किताब पढ़ने के बाद, after reading your book, I think Jagmohan was much more apt than Jagjit. Conquer having a very negative connotation, as we all know. That's because you're in the army. I was in the army. No, I think it's because a Baba came to their house and said कि ये जगमोहन है, इसका नाम तुम जगजीत कर दो ये बच्चे का, क्योंकि ये जग को जीत लेगा. And I don't think he was out to conquer the world. I think he was out to conquer hearts, which is why we are talking about him today. और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं जगजीत सिंह जी की गज़ल के बारे में. सत्या जी ने बहुत बढ़िया लिखा है अबाउट अनफॉरगेटेबल्स. और हम लोग जो एक आपसी बातचीत में जो हमने एक जो खाका खींचा आज के मजमू का, उसमें ये था कि हम 3 ऐसे उनके अनफॉरगेटेबल्स को लेंगे जो कि हम लोग के दिलो दिमाग में आज भी बसे हुए हैं. One of these is the Unforgettables. Unforgettables was launched in 1976, and Unforgettables happens to all the ghazals in Unforgettables. और आप ही की किताब से पता चला कि जगजीत सिंह introduced the Western folk and country music into ghazal, which was probably always based on khayal and rag, as we know, anybody who knows about music, and was dominated by such very strong personalities as Begum Akhtar, Mehdi Hasan. You can imagine, I mean, that I will leave to Satya ji, ki how Jagjit Singh had to fight his way to establish Western music, and rather not establish, I would rather say the fuse, he fused together, the fusion. I think the thing happened quite accidentally or quite casually. He didn't plan it that way. He wanted to be in playback music. It didn't happen. वहाँ रफ़ी जी बैठे थे, हेमंत कुमार बैठे थे, मन्ना डे बैठे थे, किशोर कुमार बैठे थे, तो इनके लिए जगह तो पैर रखने की जगह नहीं थी. So he started singing ghazals कि चलो यही गा लेते हैं. और उनकी एक रिकॉर्ड बन गई, तो he said this is where I should go, and he liked the guitar, so he started strumming it. हारमोनियम गिटार मिला के वो कुछ करते थे. तो I think there were controversies about it, and people would say ये ऐसे थोड़ी गज़ल गाते हैं. You know, the purists always like to pull something out from whatever you're doing and say ऐसा नहीं होना चाहिए. So he said ठीक है, आप बताओ मुझे गज़ल कैसे गाने चाहिए, क्योंकि गज़ल जो है वो आखिर पोएम है. It is not a song. तो जैसे मन में आए गा लो, और मुझे ऐसे मन में आ रहा, मैं ऐसे गा रहा. एक जगह और हमारे ख्याल से आवाज सुनाई दे रही है. एक जगह और बड़ी इंटरेस्टिंग अभी मुझे पता चला कि मुझे लग रहा था कि चित्रा सिंह से बातचीत में आपने वो लिखा है, लेकिन there's a very wonderful word that you have, rather a phrase that you have used, कि Jagjit Singh developed his song and embroidered it. I think this is something which aptly describes his entire, you know, musical approach to this thing. Unforgettables के साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि क्लैरेंस पीटरसन, गिटारिस्ट,
और ये हमें बहुत बाद में पता चला, और एज यंगस्टर्स हम लोग यहाँ बहुत सारे यंग लोग बैठे हुए हैं, गज़ल के प्रति जो एक अट्रैक्शन हुआ वो इट वॉज बिकॉज ऑफ द गिटार। और हमें याद है उनकी जो 2 गज़लें, एक तो कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, दोनों में जो स्ट्रमिंग एंड दिस थिंग ऑफ गिटार एंड द वेस्टर्न म्यूजिक, दैट वाज अमेजिंग। और वो क्लैरेंस पीटरसन की वजह से था, हाउ ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in his life. Ma'am, I would like you to throw some light on this. Well, he was a guitarist who also used to be part of the shows abroad. तो उन्होंने जगजीत और चित्रा जी को shows में ले गए अफ्रीका, and that is where the romance started developing between them. But there was a friendship which became a romance. Jagjit ne, Chitra ji was saying कि क्लैरेंस ने तो बिकॉज ऑफ हिम ही प्लेड क्यूपिड लिटरली, कि अगर हम साथ में नहीं जाते तो शायद वी वुड नेवर हैव बिकम अ टीम, बिकॉज ही टॉट अस टू सिंग टुगेदर. एंड एज यू सेड, ही एम्ब्रॉयडर्ड द सॉन्ग. Vertul ji, you said he embroidered the song. It's because he was trained in music by some big ustads. And Chitra ji again says कि मैं तो I was a parrot. जो वो गाते थे वो सुनाते थे, मैं गा लेती थी, पर वो गा सकते थे एक फ्रेज को लेके 1 घंटा, because he was classically trained and he held himself back because of me. That was his generosity of heart. तो आपने फिराक की जिक्र की, तो हम इनसे एक गाना सुन ले फिराक की. हाँ, फिराक बदल कर भेज, वही वाला गाना. आप सभी को नमस्कार. और मुझे ये आपने मौका दिया कि अजीत सिंह मेरे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं, और जब उनकी बात निकलेगी आई थी गज़ल सामने, तो ऐसा लगा था कि बिल्कुल सुनते ही जाएं, और कदम एकदम ठिठक गए थे हमारे, क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ म्यूज़िक का बहुत माहौल था. मेरे बाबा खुद शायर हैं कानपुर के, तो काफ़ी गज़लें सुनी थी उनकी, और धीरे धीरे उनसे एकदम गज़ल से तो पहले से शौक़ था ही, लेकिन जगजीत सिंह को सुनने के बाद गज़ल से मुझे इश्क हो गया. और जब मैं एमए में पढ़ती थी तब कानपुर में एक कंपटीशन हुआ था, उसके फाइनलिस्ट जगजीत यहाँ गए थे दिल्ली, और वहाँ हमारे जज थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी. तो मुझे उनसे अवार्ड लेने का मुझे मौका मिला और डिनर करने का मौका मिला. ये मेरा सबसे खुशगवार पल है.
तो फिराक गोरखपुरी का एक कलाम है, जैसा आपका आदेश हुआ है। आदेश नहीं, निवेदन। जी। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी, ए जिंदगी, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। मक्ता प्रस्तुत कर रही हूँ। फिराक अक्सर बदल कर भेस, मिलता है कोई काफिर। फिराक अक्सर बदल कर भेस, मिलता है कोई काफिर। कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं, कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। Thank you. Very nice. I must, some of the music connoisseurs will agree with me that फिराक गोरखपुरी को गाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। आप ज़्यादा अच्छे से इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, क्योंकि फिराक साहब को की दो गज़लें जो हैं अनफॉरगेटेबल्स में जगजीत सिंह साहब ने गाई है, और जी रात भी नींद भी कहानी भी, जी जी ये चित्रा मतलब उनके अनफॉरगेटेबल्स एल्बम में ये दोनों जो हैं। अच्छा, अनफॉरगेटेबल्स के बारे में एक और आपने बहुत ही कमाल की एनालॉजी ड्रॉ किया है, जो कि वो लोग जो 40s और 50s के संगीत से ज़्यादा संबंध रखते हैं, आई थिंक दे वुड बी रादर एबल टू बेटर अप्रिशिएट दैट। यू हैव रिटन कंपेयर्ड दैट द लॉन्च ऑफ अनफॉरगेटेबल्स was equivalent to the launch of Jagjit Singh as a singer, which was the way Lata Mangeshkar was catapulted with Aayega Aane Wala. खेमचंद प्रकाश साहब की म्यूजिक थी और हमारे ख्याल महल फिल्म. So that was one compliment you paid to Unforgettables. But before that, I would like you to elaborate. I was talking to Amitabh is sitting here. I was just discussing. He mentioned about his father's love for Jagjit Singh. About the EPs, which we also didn't know. Can you just recollect what were the? I think it was one of the first one was the 1966. Well, it's a strange story. When Jagjit came to Bombay, he came twice. The first time he ran away. He hid in the bathroom of the train because he didn't have money for the ticket. So TC जब भी दिखता था वो bathroom में जाके छुप जाता था. The second time he came, he realized that he had no money, but he had to make a living. So he and a few others, very famous names today, Amjad Khan Sahab, Subhash Ghai Sahab, Jagjit Singh himself, Kuldeep Singh, who has made the music for Saath Saath, all of them used to hang around outside Gaylord in Bombay, and they used to go to Rustam's, where you still get very good ice cream. And that Rustam gentleman would give them some ice cream to eat, bichare, you know. And they used to hang around because Shankar Jai Kishan, Raj Kapoor all used to be in Gaylord कि कहीं नज़र हमारे ऊपर भी पड़ जाए तो कुछ हो जाए. तो नज़र इनके ऊपर पड़ी. किसकी पड़ी? HMV से किसी एक म्यूजिक डायरेक्टर का. तो उन्होंने उन्हें एक EP बनाने के लिए बुलाया कि एक EP तुम रिकॉर्ड करो, एक साइड, दोनों साइड नहीं, दूसरा साइड और कोई गाएगा.
टाइम का भी कुछ लिमिट होता था? टाइम लिमिट तो होता था, 2 गाने थे एक साइड में और 2 गाने दूसरे साइड पे, छोटी सी 45 RPM की रिकॉर्ड थी वो। तो उन्होंने रिस्क नहीं ली कि नई आवाज़ है पता नहीं, तो अदर साइड हैड एन एस्टेब्लिश्ड सिंगर। तो पहला जो इनका रिकॉर्डिंग हुआ, उन्होंने 2 गाने गाए, एक अपनी आवाज़ में और एक मुकेश साहब की आवाज़ में। He said मुकेश इज़ पॉपुलर, मैं शायद वैसे नाक से गा लूँ तो शायद मैं पॉपुलर बन जाऊँ। तो उन्होंने 2 गाए एंड ही सेज इन सम इंटरव्यू कि आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो आवाज़ में मैंने गाया दैट बिकेम मोर पॉपुलर। और इसके पीछे और एक कहानी है कि जब इनकी EP रिलीज होने वाली थी, उन्होंने कहा कि अब पब्लिसिटी तो करनी है, उसके ऊपर फोटो तो डालना ही है। So he said there is another story in the book which I won't tell you about of what happened because he was a Sardar, and when he went with his turban to sing at a college festival, what happened I won't tell you. Yes, that But is interesting story. He said वही बात यहाँ होगा, nobody will even pick up saying Sardar क्या गाएगा गजल, you know. So he went and cut off his hair. And that evening of the launch, he went for the launch, everything was over and he had to sing at a wedding. उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया दरबान ने। बोला नहीं नहीं तुम कौन हो, तुम चले जाओ। बोले नहीं मैं गायक हूँ, गाना है मुझे शादी में। बोले नहीं वो तो पगड़ी वाला है तुम नहीं हो। इंटरेस्टिंग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और दैट मेक्स द बुक अपार्ट फ्रॉम अ वेरी वेरी डीप इंटेलेक्चुअल, आई मस्ट से, kind of inputs on music and life of Jagjit Singh. Some of the very fun facts which is there. One of them is, अच्छा by the way, अभी आपने साथ साथ का नाम लिया तो हमें एक चीज़ एक याद आया, एक जो उनकी साथ साथ में हमारे ख्याल से ये हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, मैं वो शायर का नहीं, तो वो उनकी लाइफ जर्नी से कुछ इस कदर जुड़ गया वो गज़ल, वो है हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। आप जब उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको कहीं से ये लगेगा कि ये बहुत ही एक तरह का प्रोफेटिक था, और वो उन्होंने जब गाया और जिस दर्द से गाया, कहीं ना कहीं से वो सब उनकी ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में, चित्रा सिंह और जगजीत सिंह साहब दोनों लोग की ज़िंदगी में कहीं से कहीं वो सच होने वाला था। और 2 सवाल और मैं पूछूंगा, आप इजाज़त दें अगर तो। एक तो इमरोज साहब का डेथ हुआ है अभी कुछ दिन पहले, ही पास्ड अवे, और आपकी किताब से ही पता चला कि अनफॉरगेटेबल्स के बाद जगजीत सिंह ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इक्वली इंटरेस्टिंग, हम हिंदी भाषी लोगों के लिए वो उतना हम लोग नहीं उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे, बिरह दा सुल्तान, और वो थी शिव कुमार बटालवी। उनके जो हमारे ख्याल से हमारे कुछ जो पंजाब के लोग होंगे वो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे से वाकिफ़ भी होंगे और उनसे इत्तेफाक भी रखते होंगे। बिरह दा सुल्तान का मतलब होता है द किंग ऑफ सैडनेस, द किंग ऑफ सैडनेस, किंग ऑफ सैडनेस, किंग ऑफ पैथोस, किंग ऑफ मेलंकली, व्हाटएवर सिनोनिम्स यू कैन। बिरह दा सुल्तान की जो उपाधि दी गई थी वो अमृता प्रीतम ने दिया था शिव कुमार बटावली साहब को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उस पर थोड़ा सा आप बिरह दा सुल्तान के बारे में कुछ हम लोग को जानकारी दें। वो अगेन इट वॉज अ बिग हिट। वो बहुत ही प्रभावित थे उन गानों से। He wanted to do something about it and he says I want to pay my homage to this poet. तो मैं people told him मत गाओ, तुम अगर अनफॉरगेटेबल्स कर चुके हो तो यहाँ कहाँ तुम जा रहे हो, तुम टाइपकास्ट हो जाओगे, you will become noted as only a पंजाबी सिंगर, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। He said नहीं, मुझे दिल से ये करना है, मैं करूँगा, और जो भी हो जाए होने दो। So that is how he made that. He sang those songs. He composed the music for it. Oh, wonderful. So it was a real homage. लेकिन वो after that I must listen to Biradha Sultan. Frankly, I haven't as of now. And one more thing, there is a wonderful biopic made on Jagjit Singh. आप लोग कभी अगर मौका लगे तो you must see that. कागज की कश्ती, ब्रह्मानंद सिंह। मेरा सवाल सत्या आपसे ये है कि how were you ever involved, or were you approached to be involved with that? After, because this biopic came after your book was published, if I'm not wrong.
So how were you came associated with after that? my book was published, because writing a book is not as difficult or is a one-person Yes. job. His job had post-production. All right. We started the work almost together. In fact, he scanned the pictures for my book. उसमें इस किताब में जो 40 फोटोज हैं, some of them very rare, जो चित्रा जी ने हमें दिए, उन्होंने स्कैन करके मुझे उसमें से सिलेक्शन करके दी. कमाल है. So we worked together only to that extent. वो अपने फील्ड में वो he is known for what he does. One more thing. You have often quoted Beyond Times. Right. Beyond Times also happens to be one of the album, Jagjit and Chitra Singh. Yes. But Beyond Times is also a book, very, I think, limited edition. That's what you have mentioned. It was a personal edition written by a and friend. 40 hours of interview with Jagjit Yes, Singh. with many people. Okay. That is where I got, because I wrote this book 2 years after Jagjit ji passed away. So I didn't have his interviews, Okay. though I had met him a couple of times. तो वहाँ से वो interviews मैंने permission से लिए, and also his father who had passed away, his mother who had passed away, ये सब वहाँ से मिला मुझे. और करतार सिंह साहब का भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो तो anecdote है. हाँ, वो उनको तो मैं जी दिल्ली के से ग्रेटर कैलाश में जो लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ एक बहुत मशहूर चाइनीज रेस्टोरेंट है जहाँ पे था, अब नहीं है. अच्छा, ओके. अच्छा, एक पारुल, वी हैव सम. We have sometimes such an engrossing session, we don't want it to end. Okay, So no, we but should listen to a song. one song. Yes, one song, and again or let's have from Mirza Ghalib, any of the Mirza Ghalibs. यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि जब जगजीत सिंह से मैं मिली और हमारा डिनर सेशन हुआ, तो मैंने कहा आप कुछ मुझे सजेशन देंगे, कुछ बताइए, कुछ गाइडेंस. तो उन्होंने बोला कि खरज का रियाज किया करो. खरज मीन्स आप बेस का रियाज किया करो. जो बच्चे अभी यहाँ अगर म्यूज़िक लिए हैं तो वो ये जान लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई पिच में गाना ही बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जगजीत सिंह ऐसे समय में हुए जब बहुत, जैसा मैम ने बताया कि रफ़ी और ये सब लोग अपनी उसमें चरम सीमा उस पर थे, तो ऐसे में अपनी जगह बना लेना और बेस में गाकर बना लेना बहुत बड़ी बात है. तो गालिब, मिर्ज़ा गालिब का तो हम सबको पता ही है कितना हिट हुआ है उनका म्यूज़िक. उससे कुछ चंद शेर मैं सुनाना चाहूँगी. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले. निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूंचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूंचे से हम निकले. कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम
पर इतना जानते हैं कल वो निकला जाता था कि हम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो अब हाँ हाँ बिल्कुल, एक बस हमारे पास है 2-3 मिनट। अच्छा, एक पहले तो हम चाहेंगे नीना जी कि अब अगली बार अगर BLF ऑर्गेनाइजर्स अलाउ करें तो एक सेशन आप ही के ऊपर केवल और तो थैंक यू आप। कमाल, ये बहुत शानदार था। आपकी चॉइस ऑफ गजल्स भी बहुत शानदार थे। आपने बताया था चॉइस ये कर। नहीं, हम लोग बात कर रहे थे तो चुना तो आपने ही था। एक्चुअली गजलें तो उन्होंने अथाह गाई हैं और लेकिन यहाँ सेलेक्टेड ही गा सकते हैं, जो आप बोलेंगे वही गाएंगे। बेशक। ये एक थोड़ा समय कम है तो जाते जाते मैम थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा। आई मीन आई वांट टू डेयर दिस क्वेश्चन। हम लोग, आपने इतनी बायोग्राफीज लिखी हैं, गुरुदत्त पे, SD बर्मन, पिछले बार हम लोग SD बर्मन पे भी बात किए थे, जगजीत सिंह साहब की तो है ही। और मैं उस किताब को पढ़ते हुए मुझे एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि आपका जो एक क्रिएटिव फेस था, अभी भी है उसका वो दरकिनार, लेकिन जब आप फेमिना की एडिटर थी फॉर एग्जांपल, उस दौरान न जाने कितनी शख्सियत और कितने ऐसे एनेक्डोट से आप वाकिफ भी न, यू मस्ट नॉट हैव बीन जस्ट प्रिवी टू दैट, probably you would have been a part of many such get-togethers. तो my request is कि इसी महफिल में अगली बार हम आपकी कोई बायोग्राफी, आप ऑटोबायोग्राफी लिखें और हम लोग उस पर बात करें। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब लोग शामिल हुए इस पे। नाउ आई थ्रो द फ्लोर ओपन टू द क्वेश्चंस फॉर द ऑडियंस। यस प्लीज सर। Can we give the mic, please? माइक एक मिनट। It's reaching you in 30 seconds. जगजीत सिंह साहब पे बात हुई, आप सब ने, हम सब जानते हैं और हम सब उनके मुरीद हैं। भजनों पे भी जगजीत सिंह साहब ने बहुत बड़ा मुकाम कायम किया उसी दरमियान जब वो अनूप जलोटा और हरिओम शरण जैसे दिग्गज उस समय मौजूद थे। बिल्कुल अलग अपने अंदाज में उन्होंने पेश किया जो बिल्कुल दिल को छूते हैं, डिवाइन उसमें पूरी भजनों में। अच्छा, ये जो है, ये भी मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा। मैम आप इसको एलैबोरेट करिएगा कि इनका, जगजीत सिंह साहब का सबसे बड़ा बेस जो था वो उनकी स्ट्रॉन्ग रिलीजियोसिटी, उनकी जो फैमिली की, जो सत्या जी ने मेंशन भी किया है, और शब्द से उनका बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहा है शुरू से। आप इस पे थोड़ा और अगर ऐड करना चाहें। हाँ, क्योंकि जब वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्कूल में थे तब वो प्रोसेशंस, जो शब्द की प्रोसेशंस चलती थी गुरुद्वारा तक, तो वो वही लीड करते थे। पर उनकी रिलीजियोसिटी, बीच में तो वो गज़ल में पहुंच गए, वहीं पे रहे, काफ़ी गज़ल गाया, वर्ल्ड टूर किया, सब कुछ किया, बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम पाए। बट व्हेन ही लॉस्ट हिज सन, ही लॉस्ट हिज म्यूज़िक बहुत दिन के लिए। चित्रा जी तो कम्प्लीटली खो डाली, पर ही लॉस्ट हिज म्यूज़िक, और वो उसके बाद उनका पूरा ही नेचर ही बदल गया। ही जस्ट डिसाइडेड दैट लाइफ इज़ नथिंग बियॉन्ड द स्पिरिचुअल। तो वो उसके बाद इतने भजन हर लैंग्वेज में, हर रिलीजन के लिए गाने लगे, यू नो। तो इसीलिए उनका जो भजन का जो कलेक्शन है वो बहुत फॉर्मिडेबल है और बहुत हार्ट से है। It is profound, and he sings from the heart because the pain is there. Any other question? We have another question for yes. Thank you. जगजीत सिंह जी का एक एल्बम गुलजार साहब के साथ आया था। मिर्जा गालिब? गुलजार साहब। अच्छा, गुलजार बहुत है उनके साथ। तो उसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा होगा। अच्छा, वो तो स्टेज शोज करते थे, एंड गुलजार साहब वुड डू द कमेंट्री ऑन इट, एंड देयर यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ, यू नो,
bantering between them, teasing between them, दोनों, because they were very close friends. And you mentioned that वो कुछ इशारा भी करते थे, दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट होता था. and वो समझ लेते थे. But I think the biggest thing they did together was Mirza Ghalib. वहाँ भी झगड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे से बात नहीं किए, क्योंकि गुलजार साहब इज अ प्योरिस्ट. ही सेड मुझे गिटार विटार की ज़रूरत नहीं है, आप वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे जो उनके टाइम पे यूज़ होता था. तो जगजीत बोले ये कोई गाना होता है, इसको गाना बोलते हैं, मैं नहीं गाऊंगा इसको. सो दोनों सल्क किए काफ़ी दिन, फिर समझौता हो गई. वो कैसे हुई आप पढ़ लेना. हाँ, वो इंटरेस्टिंग. मिर्ज़ा गालिब में 3 आपने लिखा है. एक तो वो उन्होंने अपनाया था फ़कीर स्टाइल, जिसमें वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा वाला, और एक स्टाइल उन्होंने अपनाया था मुशायरा स्टाइल, जो कि इन्होंने नीना गुप्ता साहब जी ने गाया है. और एक और स्टाइल दिल ही तो है न संगो खिश्त, वो जरा आप थोड़ा देर के लिए सुना दीजिए. और एक लास्ट स्टाइल उनका जो था वो मिर्ज़ा गालिब में, वो था उनका फ़कीर मुशायरा, और एक और स्टाइल था जो कि मैं अभी भूल रहा हूँ. खैर आप इसको गाइए, फिर हम लोग इसके. हाँ ये जी. अच्छा, हर एक बात पे कहते हो कि तुम हर एक बात पे, वो है मुशायरा स्टाइल का. और हाँ, इसको उन्होंने आपने नाम दिया था कोठा स्टाइल, जो ये दिल ही तो है न संगो के. 2 minutes. अभी आपने गुलजार साहब की बात की, तो मैं एक कल ही मैं पढ़ रही थी जगजीत सिंह के बारे में, और गुलजार जी जो उनके एसोसिएट, जिनसे एसोसिएशन रहा है, तो गुलजार साहब ने बहुत अच्छा लिखा है जगजीत सिंह के लिए. अगर आप मैम बोलें तो मैं पढ़ूं. गुलजार साहब ने लिखा है उनकी डेथ के बाद जगजीत सिंह की. एक बौछार था वो शख्स, एक बौछार था वो शख्स, बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था. बिना बरसे किसी अब्र की सहमी सी नमी से जो भिगो देता था. एक बौछार ही तो था वो, जो कभी धूप की अफशा भर के दूर तक सुनते हुए चेहरों पर छिड़क देता था. सिर हिलाता था कभी झूम के टहनी की तरह, लगता था झोंका हवा का था, कोई छेड़ गया है. गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह, गुनगुनाता था तो खुलते हुए बादल की तरह. मुस्कुराहट में कई तरबों की झनकार छुपी हुई थी. तरबों मतलब सितार के जो तरब होते हैं. मुस्कुराहट में कई तरबों की झनकार छुपी थी. एक आवाज़ की बौछार था वो, एक आवाज़ की बौछार था. बहुत बढ़िया. एक बात मैं और बताऊं जी कि ये एक पार्ट ऑफ अ कलेक्शन है जिसका नाम है केज्ड, और गुलजार साहब ने मेरे पास पूरा कलेक्शन दिया कि तुम ही ट्रांसलेट करो. मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब आपकी ऑटोबायोग्राफी में ये सब आना चाहिए. तो ये अगले साल निकल आएगा. ठीक है. दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों. दिल ही तो है न संगो खिश्त, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों. रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों. दिल ही तो है, देर नहीं हरम नहीं, डर नहीं आस्ता नहीं, बैठे हैं रह
संगों खिश्त दर्द से भरना क्यों, दिल ही तो है गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोई जार जार क्या, रोई जार जार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश्त दर्द से भरना क्यों, दिल ही तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल जो जगजीत सिंह साहब ने गाई है, उसको सुनने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब साहब की आवाज़ कैसी होगी। जगजीत सिंह बन गए। नसीर, जगजीत साहब, गुलजार और मिर्ज़ा गालिब। जब मेरी फोन पे आपसे बात हुई थी जी हाँ। तो मुझे लगा कि मैं नसीर से बात कर रही हूँ, आपकी भी आवाज़ कम अच्छी नहीं। अरे वाह, आज आपने दिन बना दिया। So, can we take just one last question from the audience? One last question. Yes, please. Yes, we spoke about it. We have. In fact, Jagjeet Singh was probably the first one to use the harmonization. If you the songs, he was the first one. Harmonization is a very Western music concept. That way you see. And the Actually, Western वो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि जो गजल में परंपरागत साज बजते थे, जैसे हारमोनियम है, सारंगी है, तबला है, उन्होंने इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया। उन्होंने गिटार परकशंस अलग यूज किए, उन्होंने कीबोर्ड यूज किया। तो नहीं, और एक और बहुत कमाल की कथा कलाम माफ, एक और बहुत कमाल की उनका वो था कि ही हिमसेल्फ वाज अ काइंड ऑफ अ साउंड इंजीनियर। आपने अपनी किताब में इसको बहुत उससे मेंशन किया है। वो खुद म्यूजिक को मिक्स करते थे। यस करेक्ट, यस अगर इफ यू लिसन टू हिज गजल्स एंड इफ यू हैव time to buy the book and get it signed by the author also. Yes, of course. So, okay, आप मिलेंगे तो और हम लोग इस पे बात करेंगे. It's a very interesting topic, harmonization and Western music in Jagjeet Singh's ghazals. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Neena ji. Thank you. We would request all of you to buy the book and get it signed by the author. I think there are only 7 copies. They will be lapped up like this, ma'am. There is an author signing desk where the author will be available. If you want to get your book signed by the author, you can get it done there. But what an entertaining session. Thank you so much. बहुत खूबसूरत बातें सत्या जी and वर्तुल जी, and बहुत खूबसूरत आवाज़ नीना जी. जी, we would just request. I would invite Mr. Vikas Rakheja, MD of Manjul Publishing House, which is celebrating its 25 years in 2024, to felicitate our speakers, Ms. Satya Saran, Mr. Vartul Singh, and Dr. Neena Srivastav, as well as Abhishek Prajapati. We would request for a group picture. The memento that you see has been painted by a distinguished Gond artist from Patangad, Ram Singh Urveti ji.
Thank you for such an enriching session. मैं एक बात साझा करना चाहूँगी आपसे। मेरे ग्रैंडफादर की बुक है शमे रोशन, जिसको हमने ट्रांसक्रिप्ट किया है उर्दू से। वो भी स्टॉक में है, स्टॉल में, आप उसको देख सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू।